Yes, okay. Now it is meeting is being recorded. I was needing a flight plan using chart number 2. Call sign is okay. Victor Tango Lima Kilo Kilo. What about other informations? Go ahead. Hold on, sir. दिख नहीं रहा. Chart number 2. Yeah, yes, sir. Make it okay. ठीक है. Make it Delhi to Ranchi. ठीक है. Ranchi. हाँ. Make it Delhi to Ranchi. Yes. ठीक है. Other things. Okay, ठीक है सर. Victor Kilo. Lima Kilo. Delhi to Ranchi. Alternate aerodrome. Alternate Jamshedpur. Alternate aerodrome Jamshedpur, right? Go ahead. Aircraft B200. Low. No, say it again. No, wait. This time wake turbulence low, okay. This time your flight rule shall be Zulu. Sorry, let it be Yankee. आज हम लोग इसका भी प्रैक्टिस करेंगे. Flight rule is Yankee. Now next. Yankee. Equipment standard. Schedule flight. Level 350. Level 350. Route. Okay, just have a look on route information. I am making certain changes. Just try to understand. If you don't understand, let me know. I'll explain. The route is Romeo 460, Lucknow. Flight level 270. ठीक है. Romeo 460 Lucknow. Flight level 270. Okay. Varanasi. Whiskey 73 East. Flight level 120. Flight level 120. Got it? Yes, sir. Now go ahead. Route हो गया सर. Time 1100. 1100. ठीक है. Any other information nil. Okay. So let's say how many info. Radial is not a flight plan, right? Okay. Radial is not a part of flight plan. Okay. Okay, let's see then how many information you have given. You have told Victor Tango Lima Kilo Kilo, B200 aircraft, Delhi to Ranchi, alternate Jamshedpur, quick turbulence low, flight rule Yankee, equipment standard, schedule flight, flight level 350, route, time, any other information. Done? All 13 are there. चलो. First, let me know about route. ये जो मैंने इतना अटपटा सा रूट निकला लिखा है, brief it कि at what route
what is going to be your flight level and why so. सबसे पहले फ्लाइट रूल यांकी का क्या मतलब है? यांकी का मतलब तो हम लोग इनिशियली इंस्ट्रूमेंट से फ्लाई करेंगे और विजुअल से लैंड करेंगे ना. And then you will be converted to VFR. What is the MRP or which location this changing over will be done? कौन से लोकेशन पे चेंज ओवर होगा? रूट को देख के समझने की कोशिश करो. वो कौन सा स्टेशन है, वो कौन सा MRP है जहां पे चेंज ओवर होगा? IFR टू VFR कौन से पॉइंट पे कन्वर्ट होगा? जस्ट हैव अ लुक. हाँ, रूट से निकलेगा इंफॉर्मेशन. ट्राई टू गेट इट डन. Old student can also suggest the answer. बनारस. हाँ ठीक है. Victor Echo Delta. If you can reply, that will be more better. Okay. कौन सा स्टेशन है जहां पे VFR से FR चेंज होगा? सर इस वाराणसी. वाराणसी. Lima kilo kilo. Are you getting it? How it is? What I told कि IFR से VFR अगर कोई फ्लाइट होता है, that is known as flight rule Yankee. Now, अगर किसी एयरक्राफ्ट को 15,000 से ऊपर फ्लाई करना है, that is flying under IFR. But if they are flying below, 15,000, they can fly both IFR plus VFR below 15,000. But above 15,000, IFR only. Now look at the chart one by one. आराम से देखेंगे. How? The question is saying कि you need to initially fly under IFR, then later on you have to go for a VFR flight. Now, Romeo 460 till Lucknow, flight level 270. It means कि reaching Lucknow you have to descend to flight level 270. 35,000 से 27,000 पे आना है. And after that you need to go till Varanasi. Varanasi में when you are taking Whiskey 73 East, that time you again descending to an altitude flight level 120. Means when you are getting your altitude below 15,000 feet over Varanasi only. ठीक है? At 270 you cannot fly VFR, right? At 350 you cannot fly VFR. So where you can fly VFR? Only over Varanasi. And by the question, पहले IFR बाद में VFR, यानी IFR डिपार्चर VFR लैंडिंग. तो इसको कहां से पता चला? रूट से. कैसे? अल्टीट्यूड देख के. Got it? Yes, sir. Okay. So this is the thing that you need to understand by the question. Yes, go ahead. Okay, now I'll back to the question and other things, but before that I need to discuss one question that has been shared by one student. Okay, so we'll discuss that first and then we'll move ahead. Okay, now I have stopped sharing the screen, don't worry about that. Just a second, I'm opening it. Okay, confirm if this screen is visible to you. Visible to you now? Yes, sir, but very now Small. Yeah. Now you can understand, right? Yes. Now, look at one question, which is written like this. You are taxiing out for departure, means you are on taxiway.
with permission to carry out a circuit before setting course. SC means setting course to destination. मैं क्वेश्चन को राउंड करता हूं, उस पे नजर मारना सब लोग, ये वाला. You are taxiing out for departure with permission to carry out a circuit before setting course to destination. That ATC inform you visibility 3500 meters. ठीक है, visibility always in meters. Seek necessary permission to execute flight and show compliance to the specified rule. Now, in this case, what you can do, visibility is low, right? And just look at the question. In other information, it is mentioned training flight. Then when you are making a circuit before departure or before setting course to destination, it means you are providing training to your candidate, right? तो ये जो आप circuit कर रहे हो, this was for training purpose. One thing is that सबसे पहले ये training flight है. दूसरी, अगर ये केस है कि when visibility is low, you can have a special VFR flight. ठीक है, special VFR flight. So you can ask ATC, request permission to carry out, ठीक है, to carry out circuit before departure under special VFR condition. Clear? Just have a look how that call will go. This is the which airport? VIJP, Jaipur, right? Now this call will go like that. Jaipur Tower, Victor Tango Alpha November Mike on 118.5, let's say. ATR 72 Jaipur to Nagpur training flight. ठीक है, मेंशन करो training flight. Would like to carry out circuit before setting course to destination under special VFR condition. Visibility 3500 meters. Request permission. समझ में आया? Nothing is there. क्या है? Already आप एक सर्किट फ्लाइट कर रहे हो because you are on a training flight. बस क्या करना है, विजिबिलिटी इज डाउन, इसी बहाने स्टूडेंट का ट्रेनिंग भी हो जाएगा. क्या करना है, स्पेशल VFR फ्लाइट सर्किट में. और ये जो आपको विजिबिलिटी 3500 मीटर बताया गया, दैट मे बी अ केस की आपको ग्राउंड ने बताया हो, मे बी अ केस की आपके फ्लाइट प्लान में मेंशन किया गया हो ड्यूरिंग अप्रूवल FIC ADC आते टाइम. ठीक है, आपको विजिबिलिटी बताया जाता है, या फिर प्री फ्लाइट इंफॉर्मेशन बुलेटिन PIB इसमें बताया गया हो, या फिर डेटिस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको बताया गया हो कि विजिबिलिटी इज 3500 नॉटिकल माइल. जनरली द विजिबल एरिया इज 8 किलोमीटर इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने 8000 मीटर सामने दिखना चाहिए, तब आप एक VFR फ्लाइट कर सकते हो अंडर नॉर्मल कंडीशन. But special VFR में if 3500 nautical mile is visible, you can go for a special VFR flight. Considering the sense कि जैसे जैसे visibility बढ़ता जाएगा, आपका जैसे जैसे टाइम ढलता जाएगा, विजिबिलिटी इंक्रीज करता जाएगा, तो आप टेक ऑफ कर सकते हो, फिर प्रोसीड करो. डेस्टिनेशन के टाइम पे देखा जाएगा कि क्या विजिबिलिटी रहती है आपके लैंडिंग टाइम. सो इफ विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड, then you can have a special VFR flight. ठीक है, and they will approve it. Why? Because this is a training flight. The main thing you are having, you are on a training flight. स्टूडेंट का इसी बहाने ट्रेनिंग हो जाएगा कि कम विजिबिलिटी में कैसे फ्लाई करेंगे. होटल किलो सियरा, गॉट दैट? यस सर. सर नॉर्मल VFR का रेंज 5 किलोमीटर है ना मिनिमम?
5,000 meter. एक second, I think I have somewhere seen 8. I'm missing this data, by the way. ठीक है, I think it's yes, it's a 5,000 meter only, 5 kilometer. Yes, you are right here. सर ये जो कॉल है ना, कॉल, हाँ 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 हाँ, उस वो BIJP होगा सर, वो BAJP आपने लिख दिया। अच्छा अच्छा, VAJP, ठीक है। सर इस एक चीज इसमें और ऐड कर सकते थे कि ऑन टैक्सीवे चार्ली या टैक्सीवे का इन्फॉर्मेशन Position, देके। very good. Your position, very very good. good. Your position, very good. Right now on taxi with Charlie. जयपुर को मैंने VAJP लिख दिया, right? ये VIJP होगा। Hemant, it's 8 kilometer only, 8,000 meter under normal VFR. नहीं, हम 5,000 मीटर पड़े हुए थे, मेरे दिमाग में यही चल रहा था 5,000 मीटर। Wait, just check the data again. ठीक है सर। ठीक है, एक बार और चेक करना। डेटा स्पेसिफिक यू कैन ऑलवेज चेक, क्रॉस चेक। हो सकता है मेरे ध्यान से कई बार उतर जाता है, कई बार मैं कुछ बाय मिस्टेक एनीथिंग आई माइट हैव सेड, तो डेटा सेंट्रिक चीजों को एक बार अपने साइड से वेरीफाई कर सकते हो, दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके ओके। फॉर मी आई थिंक इट्स सेम, ओनली 8 किलोमीटर इन फ्रंट ऑफ यू। सामने आपको 8,000 मीटर दिखना चाहिए। ओके, डन। ओके। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब देखो, क्वेश्चन जितना ज्यादा लेंदी रहता है उतना ही ज्यादा सिंपल होता है। एक चीज तो तुमको मान के चलना पड़ेगा हमेशा, ठीक है? Whenever a question is lengthy, the answer will be simple. But क्या होगा कि आपको वो चीज, ठीक है, समझ में आनी चाहिए अच्छे से, फिर आंसर बहुत सिंपल बनता है। टफ कौन सा होता है पता है? जिसके क्वेश्चन छोटे होते हैं। क्या क्या आंसर करना है ये सोचना पड़ता है किसी भी कैंडिडेट को। ओके, नाउ so this was the thing when we are reporting a training flight. ये क्या हो गया? When we are on a training flight. Now with this question we'll move ahead, but before moving ahead, अभी टाइम आ गया है थोड़ा क्वेश्चन के सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको ब्रीफ करने का, कि उसका मतलब क्या होता है। जो क्वेश्चंस के ऊपर में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उनका मतलब क्या होता है, हाउ दैट इज बीइंग कंसीडर्ड। हाँ, नाउ लेट मी ब्रीफ वन बाय वन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आंसर ऑल द आंसर इन असेंडिंग ऑर्डर। मींस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करके आप 2 पे जाओगे, 2 का आंसर करके आप 3 पे जाओगे, एंड 3 का आंसर करने के बाद ही 4 पे जाओगे। ऐसा नहीं कि सेकंड का आंसर पहले, थर्ड का आंसर पहले, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देन यूज हाइपोथेटिकल डेटा, यूजेज ऑफ रेडियल एंड DME इज रिकमेंडेड। हम लोग पोजीशन रिपोर्ट में ऑलरेडी इसको यूज करते हैं। देन for messages that require to be transmitted at a specific time, candidate should write the specific time against the question, ठीक है, against the question number on answer sheet। इसका क्या मतलब हुआ? कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा लिखा हुआ ATD, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू आर ऑन टैक्सी वे, यू वांट टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग एट 500 फीट बिफोर सेटिंग कोर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में या तो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले या क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देगा ATD। तो इसका क्या होता है, अगर आपका शेड्यूल डिपार्चर टाइम 1030 है तो यहां मेंशन कर देगा ATD 1045। ATD means actual time of departure. Then actual time of departure. So when you are going to write the answer of question number 2, you need to first write ATD and you need to speak also actual time of departure 1045. Then start writing answer, Jaipur Tower, Victor Tango, Lima Kilo Kilo. समझ में आया सबको? स्पेसिफिक टाइम अगेंस्ट द क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब यही हुआ
कि अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया है ATD, तो आप आंसर करने से पहले उसको मेंशन करो, तब आंसर स्टार्ट करो। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस में इसको लाएंगे प्रैक्टिस में, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। देन द फोर्थ वन इज कंटिन्यू आंसरिंग टिल द टाइम यू आर टोल्ड टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आपको अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए नहीं बोला जाए तब तक मत जाइए। दूसरा, यूज एविएशन लैंग्वेज एंड प्रिस्क्राइब्ड फ्रेजियोलॉजी इज मैंडेटरी। जब तक आपको किसी भी सेंटेंस का फ्रेज मिल रहा है, किसी भी सेंटेंस के अगेन कोई फ्रेज बनता है, तो उस फ्रेज का यूज करिए। अवॉइड करके काम नहीं चल सकता। ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेज आपके क्वेश्चन, आपके आंसर में दिखने चाहिए। क्लियर? ठीक है, गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Okay, now the chart is already with you. I am going to give the question and help me with the answer. The question is, ठीक है, पहला क्वेश्चन। ओके, जब आप आंसर करने लगोगे तो क्या होता है कि आपको क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ता है और साथ ही साथ बोलना भी पड़ता है। सो यू कैन से आंसरिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, बिफोर गोइंग द आंसर यू नीड टू से आंसरिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखो, ATD 1120। ठीक है, ATD 1120, you are passing 1500 feet. Go ahead answering. Lima Kilo Kilo will answer it. This is the question in front of you. Yes, Lima Kilo Kilo, waiting for your answer. दिल्ली टावर। नहीं, अभी अभी जस्ट इमीडिएट क्या बताया था, ATD। जहां जहां लिखा हो पहले उसको बोलो। एक्चुअल टाइम डिपार्चर। हाँ, एंड बिफोर दैट आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1 जरूर से जरूर मेंशन करो, नहीं तो एग्जामिनर बार बार पोक करेगा कि कौन सा आंसर कर रहे हो, कौन सा आंसर कर रहे हो। ठीक है, सो बिफोर आंसरिंग ट्राई टू से द क्वेश्चन नंबर आल्सो। यस, ओके, आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1, वेरी गुड। ATD। एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर बोलना है, एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर। ओके, यू कैन राइट ATD। हाँ, एक्चुअल टाइम डिपार्चर, टाइम ऑफ डिपार्चर, टाइम ऑफ डिपार्चर 1120, दिल्ली टावर, विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो, on 118.1 VIDP to Delhi to रांची। वेरी गुड। रुक जा, यहीं बताता हूँ। ना यू कैन से B200 दैट इज योर एयरक्राफ्ट मॉडल। अब क्या आया, IFR है कि VFR है, कंफ्यूजिंग है। आपके पास आया यंकी। यंकी क्या कहता है, फर्स्ट IFR देन VFR। हाँ ठीक है, तो कौन से लोकेशन तक पहले आप IFR जाओगे, टिल भुवनेश्वर, सॉरी टिल वाराणसी you are IFR, and then from Varanasi to Ranchi you are VFR. So while stating the flight plan, mention the same thing. कैसे, Delhi to Varanasi IFR, and then Varanasi to VFR. Getting it?
जो प्लान है क्लियरली बता दिया कि दिल्ली से रांची तक IFR जाऊंगा और वाराणसी से रांची VFR जाऊंगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, say it again. Okay, Victor Tango Lima Kilo Kilo on 118 decimal 1 V200 VI route no VIDP2 VIDP बोलते हैं क्या? ये सिटी का नाम लेते हैं। Delhi to okay Delhi to Varanasi on IFR Very good. and Varanasi to Ranchi VFR. Very good. C VFR. Go ahead. What to do now? Make the departure report. Okay. Current position. Passing बोलना सर अभी passing flight level बोलना flight passing level है। पहले mention बोलो passing flight level 1500 current position passing flight level 1500 level current 1500 position sorry passing 1500 feet इसके आगे क्या बताना है सर? हाँ okay wait for the answer. Hotel Kilo Sierra, make the report. Wait for the answer. Actual time of departure 1120. Delhi Tower. Victor Tango Lima Kilo Kilo on 118.1 B200 IFR Delhi to Varanasi and then BFR Varanasi to Ranchi. Position passing 1500 feet for flight level 350. Route Romeo 460. Radial 108.05 DME outbound Delhi. Time now 1125. Request climb flight level 350. Victor Tango Lima Kilo Kilo. Top of climb. You can mention 1140. Main thing was top of climb only. Okay, see, the question was very simple. Now I'll understand कि how question has demanded. Question में क्या लिखा गया है? Very simple. You are placing 1500. It means it is indicating your position. So you have to report your position. Now, during report your position, though you are passing 1500, means you are climbing. So you can report your top of climb as a mandatory report. So passing 1500 feet for flight level 350 till my cruising altitude. Remember? याद आ रहा है कुछ? Lima Kilo Kilo? Yes, sir. And then your position report, which route, which radial, how much distance you came far, what is the current time. Okay, top of climb 1140. Now request to climb 350 is an additional. If you are mentioning it, it's well and good. नहीं भी mention करोगे, that is not going to deduct your mark, especially in this question.
ठीक है, because your 350 is already approved, that's all. ठीक है, so this was the report you had to do. Now you recall क्या मिस हो रहा था? लेमा किलो किलो यस सर, रूट फ्लाइट लेवल मिस हुआ, डिस्टेंस मतलब पोजीशन रिपोर्ट, जिसे जैसा हाँ। you have asked ना कि what to report now, so what to report there? Position report, that's all, and top of climb. Got it? Now the question is for you only. The question is ठीक है, question is for you only. You are 25 nautical mile to Lucknow. Yes, now go ahead. You are 25 nautical mile to Lucknow. एटीडी पता नहीं वही कैसा होता है, बहुत लोगों से मिस्टेक होती है ना। इसमें एटीडी दिया था मैंने, एटीडी कहाँ दिया इसमें मैंने? क्वेश्चन में लिखा रहेगा हमेशा। ओके, आइदर क्वेश्चन के इमीडिएटली तो सिंपली से आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड गो अहेड, और 2 3 जो भी नंबर है। यस, nautical mile. Okay, answering question number 2. दिल्ली टावर, दिल्ली अप्रोच बोलना है सर, दिल्ली कंट्रोल बोलना है सर? वो यू डिसाइड बेटर। दिल्ली कंट्रोल, ठीक है। दिल्ली कंट्रोल विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो on 125 decimal 55 G200 instrument flight rule VIDP2 नहीं, दिल्ली। You can write VIDP but need to say Delhi only. हाँ, Delhi to Ranchi. no, it's not IFR from Delhi to Ranchi. IFR is in midway. Try to find it. Okay, so Delhi to Lucknow IFR. नहीं, लखनऊ भी नहीं है। थोड़ा सा तो ध्यान भटका है, because I had explained the same thing. हाँ हाँ, ठीक है। दिल्ली टू VIDP to Varanasi. No, Delhi to IFR. Varanasi. Okay, Delhi to Varanasi IFR, then Varanasi to Ranchi VFR. Very good. Route Romeo 460 current position. How? ऐसा कैसे? Romeo 460 is a part of position report, right? So you should use this word before reporting your route. Otherwise, suppose आपको कॉल में बोलते बोलते करंट पोजीशन बोलना मिस हो गया, कोई बात नहीं, बोलो ही मत।
whatever the parameters are there in position report, simply start saying that. ठीक है, सपोज आपसे यहाँ पे करंट पोजीशन बोलना मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, गो अहेड टिल रेस्ट ऑफ द थिंग्स, फ्लाइट लेवल 350 जो भी है आगे, गो अहेड. Route Romeo 460, flight level 350. 25 nautical mile. 20 नहीं बोल सकते, राइट? व्हाट टू से? 25 nautical mile. Outbound ना सर, outbound लखनऊ ना? Why outbound? You are going to. टू ना? हाँ, to means towards. Towards मतलब क्या होता है? Inbound, अंदर की तरफ. Okay. Inbound 25 nautical mile. Inbound लखनऊ. What is the radial? Radial 108. Current time? Time now 1120. ठीक है, नाउ यहाँ पे आप बताने फंसोगे, एस्टिमेट यहाँ पे फंसोगे. 20 मिनट्स आपको लगे इतना दूर आने में. सी, इट्स नॉट लुक रियलिस्टिक. देन चेंज द टाइम. Time now? What is the current time? Don't waste time. Don't waste time. If you are wasting time in thinking, definitely you are going to fail. Make the word. ठीक है, अगर आपको सोचने में टाइम लग रहा है आरटी में, नहीं होगा रिजल्ट. इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, नहीं ला पाओगे, नहीं होगा. गलत आए सही आए, ठीक है, गलत आएगा कोई दिक्कत नहीं, आई एम रेडी टू करेक्ट इट हियर, बट टाइम नहीं लेना है. ठीक है, मिनिमम टाइम सेकंड्स में आंसर आने चाहिए. नहीं आ रहे, प्रैक्टिस करिए कि कैसे सेकंड में आएगा. गलत होने पे आई हैव नेवर अपोक्ड यू, राइट? गलत होने पे तो सही होगा, लेकिन टाइम नहीं लगना चाहिए. व्हाट इज द टाइम देन? आपको दिल्ली से लखनऊ तक जाने में 20 मिनट लगे, इतना लेंथ? नो, 40-50 मिनट्स. ठीक है, 1 आवर ले लो. ठीक है, ठीक है. टाइम नाउ 1200. ओके, वेरी गुड. Estimating लखनऊ 1. अभी 25 नॉटिकल में दूर हूँ ना मैं? यस. ओके, तो एस्टिमेटिंग लखनऊ 1215. ओके. देन वाराणसी 1245. वेरी गुड. वाराणसी टू सर, अभी फ्लाइट लेवल हम लोग डिसेंड कर रहे तो वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना? नहीं, एस्टिमेट्स, these are the estimates. ओके ओके सर, हाँ. ओके. देन वाराणसी टू पुपैम 1300. रांची ETA. ETA 1330.
ETA Ranchi. ETA Ranchi. Okay, ETA Ranchi. ETA Ranchi 1330. What is the call? Victor Tango Lima Kilo Kilo. Very good. Now you able to write all the things. अभी सोचने में टाइम नहीं लगेगा ना, बिकॉज आपने एक बार प्लान कर लिया. सेम थिंग. नाउ मेक द कॉल इन अ सिंगल गो, नो ब्रेक्स. अच्छे से एक बार और देख लो इसी कॉल को. आपकी स्क्रीन पे भी है, आपके कॉपी पे भी है. ठीक है, सारा टाइम देख लो, सारे पैरामीटर को देख लो इन वन गो, सिंगल फ्लो. ठीक है, मेक द सेम कॉल. आई विल बी होल्डिंग. अगर स्क्रीन पे चाहिए तो आप बोलना, मैं रुकता हूँ. आप देखो और मुझे सेम कॉल सिंगल फ्लो में चाहिए, इन वन रिदम, नो ठीक है. ब्रेक्स. ओके. ठीक है, थोड़ा टाइम दिल्ली ले लो, थोड़ा टाइम ले दिल्ली लो. नहीं चलेगा सर, बोलूंगा. अक्का, दिल्ली कर. यस सर. वेट वेट, मेरे को भी तो लिखने दो. मैं लिख ही नहीं पाऊंगा. पहले इसको मिटाता हूँ. यस, गो अहेड. दिल्ली कंट्रोल Victor Tango Lima Kilo Kilo on 125.55 B200 VI Delhi to Varanasi IFR, then Varanasi to Ranchi PFR, route Romeo 460, flight level 350, 25 nautical mile inbound Lucknow, radial 108, time now 1200, estimating Lucknow 1215, Varanasi 1245, Puman 1300, ETA Ranchi, estimating time arrival Ranchi 1330, Victor Tango Lima Kilo Kilo. नॉट हैप्पी, यू हैड मेड मेनी मिस्टेक. 25 नॉटिकल माइल, और वो है पूपाम. आपने कभी पूनेन बोला, कभी कुछ पूनान बोला, क्या बोला? दैट इज पूपाम. Pupam. Okay, copy. PUPPAM, पूपाम. एंड ETA रांची 1330. ठीक है, ठीक है सर. चलो मेक दिस कॉल अगेन. चलो, नॉट अ प्रॉब्लम. We'll take you into the flow. Go ahead, say it again. Fresh call, fresh paper उठाओ, फिर से same call. Go ahead. Delhi control Victor Tango Lima Kilo Kilo on 125.55 B200, Delhi to Varanasi IFR, then Varanasi to Ranchi VFR, route Romeo 460, flight level 350, 25 nautical mile inbound Lucknow, radial 108, time now 1200, estimating Lucknow
1215 वाराणसी 1245 then Pupam It's November or Mike? Pupam. Mike Pupam 1300 estimating time arrival Ranchi नहीं, ETA रांची से ETA रांची ETA Ranchi 1330 Victor Tango Lima kilo. Okay. Very good. Now the question is same. Okay, question is same. Something is going to be changed. You are 25 nautical mile to Lucknow. Okay, and co-pilot fainted. Go ahead. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? co-pilot fainted. ओके तो अभी मेड है ना, नहीं पेन होगा सर. You decide. Just flip the paper. मैंने पढ़ा दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा. पेज पलटो, देखो क्या है. Co-pilot Victor Echo Delta. Is it going to be Mayday or Pan? It's a Mayday, sir. Mayday. Very good. Go ahead. It's Mayday. Because 2 pilot operated, 1 pilot faint, Mayday. okay Mayday Delhi Tower Delhi हाँ, control दिल्ली टावर. control से correction Tango Lima kilo on 125 Say decimal again all. 5 Say again all. You have told correction, तो मैंने उसको काट दिया, फिर आपने रिपीट ही नहीं किया दिल्ली कंट्रोल. If you say correction and then you repeat Lima kilo, तो आपका स्टेशन अटेंशन में नहीं आएगा. गया. तो जिस चीज को आपने करेक्शन बोला उस चीज को रिपोर्ट करो कि सही वाला कौन सा है. ठीक है, से अगेन ऑल, डोंट वरी. ठीक है. मेडे दिल्ली कंट्रोल Victor Tango Lima kilo on 125 decimal 55 V200 Delhi to सर अभी ये कर सकते हैं ना हम लोग क्या डायरेक्ट कहाँ पे बोल सकते हैं क्या ये पोजीशन ये बताना है क्या बोलते हैं IFRAVF हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, हटा लो, स्किप कर दो बिकॉज द क्वेश्चन इज इन इमरजेंसी मोड. हाँ, स्किप कर दो, डायरेक्ट मुद्दे पे आओ, पोजीशन बताओ, काम बताओ. ठीक है. रूट 460 फ्लाइट level 350 say again route Romeo 460 flight level 350 25 nautical mile inbound Lucknow radial 108 टाइम बताने की जरूरत नहीं सर. हाँ बताना है. ओके टाइम नाउ 1200 co-pilot
co-pilot fainted ना? Fainted. Okay, co-pilot fainted. Request. Remember? Very good. Request landing permission. Request instructions to land. Landing का permission नहीं होता है. Instructions to land. Request At? instruction to land at Lucknow. And medical service. Need medical service. ETA Lucknow. Medical service किधर? Medical service किधर? On arrival. हाँ Okay, तो medical service on arrival. ETA Lucknow. ETA नहीं, estimating Estimating Lucknow. Estimating Lucknow 1230 Victor Tango Lima Kilo. ठीक है, good one. I don't find anything wrong. Anyone? Would you like to add something or would you like to delete something? And who is going to tell me what is the wrong in this call? Which one has been wrongly reported and it is being repeated? From 2 and 3 calls. Just look at your question by yourself. Lima kilo kilo. अपना question खुद से review करो and let me know क्या गलत report हो रहा है. For the hint, I am suggesting there is a problem in one parameter. सर फ्लाइट लेवल को वो कम कर सकता है सर, वो 270 के लिए ले सकता है. का है फ्लाइट लेवल 270 तो लखनऊ के बाद है. सर इसमें जो सर एस्टिमेटिंग टाइम बोला ना 1215 होना चाहिए क्योंकि हर कॉल पे 1215 बोला. हाँ चलेगा. That is okay. ठीक है, that is okay for now. वो हाँ आपका ये चीज सही है कि जब आप एक क्वेश्चन में एक चीज को 1215 बोलते हो तो एग्जाम में उसको सेकंड में भी 1215 ही बोलो. टाइम को वेरी मत कराओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज द टाइम आर इन द क्वेश्चंस आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एक बार आपने अगर कहा लखनऊ 1215 तो दोबारा भी वही होना चाहिए. दैट इज इन दिस क्वेश्चन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. Nobody is concerning about radial. Just have a look. Is that radial is going to be 108 anyhow? There is no chance to being 108. हाँ क्या होगा? 66, 64 something. देखा. हाँ just have a look. इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं ना सर, unable to proceed for further flight. हाँ that you can add. Very good. देखो radial is 108 at this end of route. ठीक है, but देखो यहाँ के बाद कितना एंगल चेंज हुआ इसका. So this radial is not going to be 108. Radial आप 108 कब बोलोगे? When you are making a distance in respect of Delhi. Here you are making the distance 25 nautical mile in respect of Lucknow. So the radial is to be considered from Lucknow, not from Delhi. ठीक है? 114 कर सकते हैं. जिस रेडियल के जिस एयरपोर्ट के साथ आप DME कैलकुलेट करते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, रेडियल उसका कंसीडर किया जाता है. सो फॉर लखनऊ व्हाट इट कुड बी, ये चार्ट थोड़ा सा फ्लिप होगा. मींस ये चार्ट जब आप लैंडस्केप में करोगे, ये चार्ट रोटेट करेगा लैंडस्केप में, एंड देन यू कैन एबल टू सी कि दिस इज गोइंग टू बी समहाउ. क्या होगा? जस्ट हैव अ लुक. ये है 311. देखो ये है 311 राइट. ये जाएगा 360.
जा रहा है 360, ये रहा 180, यानी यहाँ रहा 90, तो कितने के बीच में आएगा? 90 के अपोजिट 270, 270 और 311 के बीच में यू कैन से 290 या फिर 285। आर यू गेटिंग इट हाउ आई हैड कैलकुलेटेड? Yes, sir. ठीक है, बी रियलिस्टिक एटलीस्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ रेडियो। क्या है? सॉरी, रेडियल। दिस इज 311, ठीक है, एंड दिस वन इज 072, मींस 00 डिग्री ये रहा, ठीक है। अब ये रहा आपका 84, तो 90 आएगा यहाँ पे कहीं, और जब 90 वहां रहा तो ये वाला रेड लाइन जो मैं खींच रहा हूं, दिस विल बिकम 90 एंड 270, ठीक है। तो ये 270, ये 311, उसके बीच का कोई एक 290, 300, एनीथिंग विल वर्क, ठीक है, बट नॉट 108। जिस Okay. भी एयरपोर्ट से रेफरेंस लेते हो डीएमई के लिए, रेडियल उसका दिया जाता है। ओके, ठीक, not a problem. Now here you can mention one more thing. Okay, here you can mention one more thing. What? Co-pilot fainted, unable to proceed for further flight. मैं आगे नहीं जा सकता, ठीक है। Proceed for further flight. Request instructions to land at Lucknow and medical services on arrival. Don't miss. On arrival, ना पहले ना बाद में, ठीक है। So Okay, you sir. need to do more Unable practice, to. more practice, हाँ, because you are lagging of concept nowadays. अब आपका concept Yes, sir. मिस हो रहा है। Now that is हाँ, that is a wrong thing. You cannot proceed further with this. थोड़ा थोड़ा आप भूलने लगे हो पिछले वाली चीजों को, तो now you need practice. अगर आप प्रैक्टिस इग्नोर करोगे, नए चीजों का बर्डन आपके ऊपर इतना ज्यादा हो जाएगा कि पूरा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। मैं देख ठीक रहा हूँ आप यंकी बताने में थोड़ा सा मिस कर रहे थे, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन आपका मिस हो रहा है, so you need more practice, otherwise that is really going to be tough. Okay, now the question is, you are overhead Lucknow, who is going to take a call? You are overhead Lucknow. Now this is the question. Anybody? You should only take a trial, don't worry. At least इसी बहाने बोलने का वो थोड़ा हटेगा। Go ahead, कुछ नया ही सीखोगे इसमें। You are overhead Lucknow. Delhi, Delhi control Victor Tango Lima Kilo Kilo on 125.5. 5-5. Okay, 55. Delhi to Varanasi. Varanasi IFR. Then Varanasi to Ranchi VFR. Route Romeo 460. Flight level 350.
अभी करंट पोजीशन में वी आर ओवरहेड ऑन लखनऊ ना. Overhead on Lucknow. Okay. Don't worry. You don't report it. Victor Echo Delta, you are you able to make the call? Means available with pen and paper? Yes, sir. I'll try. Go ahead. And don't try after saying me. जैसे भी आपको क्लासेस में चांस मिलता है, डू पार्टिसिपेट. जब तक पीछे रहोगे, आई कैन नॉट इंश्योर ना कि हाउ मच यू हैव लर्न. ठीक है, सो डू पार्टिसिपेट बाय योर ओन. ऐसा लगना चाहिए कि यू हैव अ क्रेज फॉर आंसरिंग. यस, गो अहेड. Delhi control. Victor Tango Lima kilo on 125.55 B200 IFR Delhi to Varanasi, VFR Varanasi to Ranchi. Current position on Romeo 460. Flight level 350. Overhead Lucknow. Radial 127 degree. Time now 1230. Request for flight level 270 for further flight. Victor Tango Lima kilo. Very good. Good try. Now here you did a mistake. Radial en route. See, if you are at Romeo 460, you cannot be at radial 127. Sir, but Got it? यहाँ पे जैसे Sorry. land Got तो कर नहीं रहा तो it. आगे Understood. My mistake. 7 ले लिया क्योंकि वो आगे Yes, you are right. It's my mistake. I thought the route is being changed from Lucknow. Not a problem. ठीक है. Okay, everyone. Let me just brief this call. Yes, you want to say something? नहीं, मतलब एस्टिमेटिंग देना यहाँ पे जरूरी रहता है कि नहीं? वजह से दे सकते हैं, देना है. Because the question is so simple कि you are overhead Lucknow. ठीक है? So upcoming estimates 1 and 2, make it and close the call. ठीक है? Otherwise also, if the question is so dedicated about changing flight level, इस question में क्या important था कि आपको लखनऊ से अपना flight level change करना है. ठीक है, लखनऊ के बाद 270 है. So here, after reporting your position, you need to mention main thing is request flight level 270 for further flight. ठीक है? Done. Now, the question is, you are overhead Varanasi. Now go ahead. The question is, you are overhead Varanasi. Try answering it. 1 second.
What is happening? Where is this much time is taking? सर इधर कंट्रोल मतलब दिल्ली के अंदर नहीं आएगा क्या ये? क्यों? वाराणसी के पास कंट्रोल नहीं है? Look at the वाराणसी. बट वो 10,000 तक ही है ना क्या है? सर, वो वाराणसी का दिया नहीं है, मतलब दिख नहीं रहा है कि 10,000 के वो। हाँ ठीक है सर। हाँ सर, Yes. वाराणसी कंट्रोल विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो on 120.75 B200 IFR Delhi to Varanasi, VFR Varanasi to Ranchi. Current position on Whiskey 73 East Eco, sorry, correction. East. Very good. East ठीक है. East चलेगा ना? East ही है, East. चलेगा नहीं, वो East ही है. Yes. Whiskey 73 East of level 270. Over 8 Varanasi. Radial 133. Time now 1300. Request for flight level, changing flight level. आराम से एक एक करके. दो चीज आपके मन में आ रहा है ना कि चेंजिंग ओवर करूंगा और फ्लाइट लेवल 120 बोलूंगा. दोनों चीज अलग अलग बोलो, कोई दिक्कत नहीं. 2 सेंटेंस बोलो. गो अहेड. No, say again after time now. Say again after time now. Okay. Time now 1300. Very good. Far to VFR. Changing over IFR. Changing over. Okay, एक सेकेंड. जब आप बोलते हो ना चेंजिंग ओवर, तो सिर्फ वो बोलो जो सेकेंड उसका क्या कहते हैं, सेकेंड पार्टी है. चेंजिंग ओवर टू VFR, सिर्फ इतना बोलो. इसका मतलब हो जाता है कि आप VFR पे चेंज कर रहे हो. कहां से कर रहे हो? दैट इज बाय डिफॉल्ट IFR ओनली. चेंजिंग ओवर टू VFR. चेंजिंग ओवर के बाद फ्रॉम IFR टू VFR बनने की जरूरत नहीं है. ठीक है? VFR. Request for flight level 120. For further flights, request flight 120, flight level 120 for further flights. Yes, go ahead. Estimates. Estimating at 1330 ET Ranchi 1400. क्या है? Say again after 1330. ETA हाँ. Ranchi 1400. Victor Tango kilo. Very good. So let me just brief this call one more time. इस क्वेश्चन में क्या था? You have to change from IFR to VFR and you have to lower your altitude as per 120. तो आप क्या बोलते हो? करंट पोजीशन आपने बताया, देन
सबसे पहले आपको VFR में चेंज होना है, तो चेंजिंग ओवर टू VFR, दिस इज द वन लैंग्वेज. आइदर यू कैन से चेंजिंग, अगर ओवर नहीं बोलना है तब आप बोल सकते हो चेंजिंग फ्रॉम IFR टू VFR. देख रहे हो डिफरेंस? ओवर बोल दिया मीन्स डायरेक्ट चेंजिंग ओवर टू VFR, कहां से बोलने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब आप सिर्फ चेंजिंग बोल रहे हो तो चेंजिंग फ्रॉम IFR टू VFR, IFR से VFR जा रहा हूं. अंडरस्टूड? पता चल रहा है इंग्लिश का इंपॉर्टेंस इधर. रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 120 फॉर फर्दर फ्लाइट्स, या फिर आप यहीं पे बोल सकते हो रिक्वेस्ट डिसेंड, डाउन वाला एरो देके, रिक्वेस्ट डिसेंड फॉर फ्लाइट लेवल 120 एज पर अप्रूव्ड फ्लाइट प्लान, estimating PUPAM, and then closing your calls. जो भी आपका ETA है, then closing the calls. Lima kilo kilo, are you getting these things? Yes, sir. Is this clear? ठीक, ठीक. So these are the very small things. ठीक है? Nothing is there. You just need to understand it broadly. ठीक है? And जब तक हम लोग पोजीशन रिपोर्ट को क्लियर नहीं करते हैं, आगे जाना बेवकूफी है. ट्रस्ट मी, आगे जाना हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं. अगर हमको पोजीशन रिपोर्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आगे का टॉपिक आपके लिए इतना हेडेक लेके आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे. ट्रस्ट मी. ठीक है? तो पोजीशन रिपोर्ट आपको हर हाल में क्लियर होने चाहिए. आपको जितना प्रैक्टिस करना पड़े करो. ठीक है? बिना प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होगा आरटी में, और अभी के बाद से तो एकदम नहीं. ये तो आप लिख के ले लो. कोई कितना भी महान आत्मा हो, अगर वो अभी के जैसे अभी जितने टॉपिक हो गए, इसके बाद अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. सब कुछ भूल जाओगे, सारा पढ़ा लिखा भूल जाता है. ओनली प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू देयर. ठीक है? सो कल हमने देखा था एयरप्रॉक्स का, तो आज वो भी देखते हैं. एक बार एयरप्रॉक्स का कॉल देख लेते हैं कैसे करेगा. यू आर 40 nautical mile to Varanasi. One Indian Air Force aircraft overtaken you from right and made a sharp turn at 4 nautical mile ahead of you. सब लोग क्वेश्चन लिखो, ऐसा नहीं बाद में बोलना कि क्वेश्चन में क्या लिखा है. When I am saying question, make it note in your notebook. Question is, you are 40 nautical mile to Varanasi. One Indian Air Force aircraft overtaken you from right and made a sharp turn at 4 nautical mile ahead of you. Okay? 4 nautical mile ahead of you, it made a sharp turn. How this answer can be gone? कल ही मैंने बताया था, टॉपिक अभी ताजा है. Let me know how the answer can be given. Anyone? Lima kilo kilo, you want to take a try, or Victor Echo Delta? कल ही मैंने बताया था, remember? Okay, Hotel Kilo Sierra, go with the answer. Victor Tango Hotel Kilo Sierra. Yes. Go ahead with the answer. Acha, wait. Victor Echo Delta, why you are not making answer? Then how I will able to know? How I will able to know कि आपको ये पता है कि नहीं? तो पता है, बट वो 4 नॉटिकल माइल पे कौन सा एयरफोर्स लगता है वो याद नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है, होटल किलो सियरा. नाउ यू कैन गो अहेड.
बनारस कंट्रोल, वाराणसी, बनारस का नाम वाराणसी बदल control, चुका है। हाँ हाँ बनारसी कंट्रोल, हाँ। Victor Tango Lima Kilo Kilo on 120.75 B200 IFR Delhi to Varanasi and VFR Varanasi to Ranchi. Position flight level 350, route Romeo 460, radial 307, 40 DME inbound Varanasi. Time now 1210. Air prox safety not assured. One Indian Air Force aircraft correction sighted one Indian Air Force aircraft at 4 nautical mile. Say again. Say again after safety not assured. आराम से, आराम से। दो तीन चीजें बोलनी पड़ रही है, अलग अलग बोलो, नॉट अ प्रॉब्लम। Sighted one Indian Air Force aircraft as overtaken you from right, overtaken from right। सर मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है ना सर। हाँ sighted one Indian Air Force aircraft हाँ, overtaken now that is a right, mistake, ठीक है। right from at 4 nautical mile toward हाँ, to right से आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। One Indian Air Force aircraft overtaken from right and made a sharp turn। क्वेश्चन में है made a sharp turn at 4 nautical mile ahead of us। ठीक है, this is in the question। Now Yes, sir. repeat it and go ahead। हाँ, sighted one Indian Air Force aircraft overtaken from right, made a sharp turn at 4 nautical mile ahead of us। Request time take of incidence, okay time of incident 1218, request take time of appropriate action incidence 1218 1208। You have reported Varanasi at 1210, right? yeah मैं सोचा 1208 Then what to request? Take appropriate Request action। investigation, request investigation, in this case investigation, why that has entered। ठीक है, okay, is that clear to you now? Victor Echo Delta Lima Kilo Kilo दोनों को क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Okay। anything to ask in this question? Okay, not a problem। See, the main thing is when anyone is writing the question, means when I am giving the question, the first thing you should make a note in your notebook। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, ठीक है। उसके बाद whenever is anyone making the answer, try to note। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसने गलत आंसर बताया तो काट देना, आधा पेज ही तो बर्बाद होगा, लेकिन आपको उससे लर्निंग बहुत ज्यादा मिलेगी। And if he is making a right, that is become a final answer for you, so that is going to help। Now I am not going to teach any
additional topic today. ठीक है, I'll hold the moment here only. Till the time I am not happy with the performance till position report, I am not going to move ahead. Okay, because it won't work. Okay, I need a clear practice on position report calls. Whatever the associated calls, associated question types, I need a clear reporting over this. Till the time I will not satisfied with the position reports, I will Yes, not move ahead. ठीक है, बिकॉज इससे कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं, ट्रस्ट मी। क्या होता है, अगर आपको एंड अब तो ये चीज 2 बार हो गया, ठीक है, मेरे इंस्टीट्यूशन में, मीन्स मेरे एकेडमी में ही 2 स्टूडेंट्स हैव फेस द सेम। उनको एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही 15 मिनट तक रोक के रखा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाने ही नहीं दिया। तो इट डजंट मेक सेंस इफ यू आर अनेबल टू मेक बेसिक आंसर्स एंड यू विल लर्न ऑल। कोई फायदा नहीं, आपको पहले से ही आगे नहीं बढ़ने देगा। तो क्या फायदा आगे पढ़ के जब आप पहला ही क्लियर करके आगे नहीं जा पाए तो। एंड पोजीशन रिपोर्ट के कॉल्स मोर और लेस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं, मोर और लेस क्वेश्चन नंबर सेकंड में पोजीशन रिपोर्ट के कॉल्स आ जाते हैं। तो आगे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, वो आपको एग्जाम देने ही नहीं देगा एग्जामिनर, और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप बोलोगे सर गो टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही विल से नो। तो अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए और वो अगर पहला ही निकल गया तो आप भूल जाओ कि आपको सेकंड पे बढ़ने भी देगा वो। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ के आरटी में कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़ो दुरुस्त पढ़ो, ठीक है, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्यों, वो आगे ही नहीं बढ़ने देगा। भले आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ का आंसर आता हो, आप सेकंड पे ही लटक गए ना, यही रोक देगा। एंड पिछले बार ही हुआ है, आई थिंक इन दिल्ली सेशन ओनली, वो फर्स्ट क्वेश्चन से हिलने नहीं दिया, नो नो करते करते सेकंड पे ले गया। एंड आई थिंक विक्टर इनको डेल्टा इज आल्सो विक्टिम ऑफ दैट ओनली। परेशान करते करते पूरे 30 मिनट्स में 2 क्वेश्चन ही वाज एबल टू मेक इट राइट। एम आई नहीं सर, मैंने राइट इनको डेल्टा? सर आई अटेम्प्टेड हाँ 3 अच्छा 3 क्वेश्चंस, ठीक है। या बट मेरा टाइम ही खत्म हो गया, एंड मतलब देन टाइम, हाँ टाइम कंज्यूमर। सो ड्यूरिंग आंसर एग्जामिनर आल्सो कीप पोकिंग यू, वो आपसे बार-बार डिस्टर्ब कर रहा था या फ्री छूट दिए हुए था? एग्जामिनर ने तो उतना नहीं हाउ किया, वाज मतलब द 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे कि मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे ना, उसमें ऐड अप कर रहा था कि मतलब पर क्या है सर। यस, ठीक है, वेरी गुड। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, देयर आर सर्टेन फैक्ट। होता ना सर, यस यस, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। हाँ हाँ, गॉट इट मैं इतना नंबर अंडरस्टूड। नाउ सी, अच्छा नहीं। हाँ एज आई टोल्ड ना कि देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग एग्जामिनेशन, लाइक टाइम। आज भी एक क्वेश्चन पे someone was taking time, आई वाज सेइंग ना, टाइम कंज्यूम करोगे तो आप अपना खुद ही लॉस करोगे। अगर आप इमीडिएट नहीं सोच पा रहे हो, इट इज अ बिगेस्ट लॉस। वहां पे आपको प्लानिंग का कोई टाइम नहीं है। आप मैक्सिमम, ठीक है, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आप मैक्सिमम एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट का टाइम ले सकते हो कि कौन से एटीसी को कॉल करूंगा, क्या क्या रिपोर्ट करूंगा। अगर आप इतने में मैनेज नहीं कर पाए, कोई फायदा नहीं पढ़ के, वो रोक देगा, पक्का रोक देगा, आपको आगे हिलने नहीं देगा, एक सेंटेंस नहीं बढ़ने देगा, ठीक है, और इतना नर्वस कर देगा आपका पूरा डिमोलिश। एकदम क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए, पूरा अंदर से फटक से, जैसे ही बताए ये सिचुएशन है तुरंत ये बताओ, तुरंत ये बताओ। और क्वेश्चन जितना सिंपल लगता है ना, एक क्वेश्चन आप आंसर करोगे, एग्जामिनर आपको एक और क्वेश्चन ऐड कर देगा अपने मन से, हर बार वो ये करता है। जितना सिंपल क्वेश्चन 3-4 लाइन में आपने आंसर खत्म कर लिया, एग्जामिनर एक चीज ऐड कर देगा, वन मोर थिंग ही विल ऐड इट, ठीक है। सो टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यस गो अहेड, यू वांट टू से समथिंग को डेल्टा? ऐड ना करे ना अगर हाँ, एग्जामिनर तो आगे से निकल जाता है। तंग करेगा, उसका काम ही है तंग करना।
ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एग्जामिनर तंग नहीं करे या वो डिस्टर्ब नहीं करे, उसका काम है तंग करना, ठीक है, बिकॉज दे वांट टू सी द हाउ प्रोफिशिएंट यू आर, ठीक है, आपको बात करने आती है कि नहीं, ही जस्ट वांट टू सी, वो तंग करेगा, उसको ड्यूटी दी गई है, प्लस तंग तो करेगा ही करेगा, क्वेश्चन ऐड करते जाएगा। आप सोचोगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर दिया, बोल देगा अच्छा ये भी बताओ, अच्छा ये करके बताओ, ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी कैलकुलेटिव इन योर अप्रोच। अच्छा ठीक है, दिस इज द थिंग। सो एनी हाउ आप सब प्रैक्टिस करो अपने पोजीशन रिपोर्ट का कॉल, आई नीड दैट परफेक्ट, देन ओनली आई कैन मूव अहेड, बिकॉज आगे के क्वेश्चन में पोजीशन रिपोर्ट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पोजीशन रिपोर्ट मैंने बोला ना, एक ऐसा रिपोर्ट है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे नंबर कटेगा, बट एक बड़े क्वेश्चन के बीच में पोजीशन रिपोर्ट ऐसा छिप के रह जाता है कि पता भी नहीं चलेगा पोजीशन रिपोर्ट कहाँ किया है, ठीक है, बिकॉज द अपकमिंग टाइम्स देयर आर गोइंग टू बी लेंथी कॉल्स, एक एक पूरा पेज भर जाएगा लिखते लिखते, तो अभी तक इसको जब तक दुरुस्त नहीं करोगे आई विल नॉट मूव अहेड। अभी भी अगर क्या कहते हैं एटीसी ढूंढने में परेशानी हो रही है और क्या कहते हैं टाइम लेके रूट में प्लानिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन दैट इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है, आपको पूरा करना पड़ेगा। ओके हेमंत, जस्ट लेट मी नो वन थिंग, व्हाइल यू आर गिविंग द कॉल, हैज एग्जामिनर ने ऐसा भी बोला क्या कि ये जो आप जैसे B200 IFR दिल्ली टू कोलकाता बोलते हो या जो भी है, ये फ्लाइट प्लान, एग्जामिनर ने इसको बोलने से मना किया क्या? होटल किलो सियरा, आई जस्ट नीड दिस इनपुट। एग्जामिनर ने ये पूरा डिटेल में फ्लाइट प्लान बोलने से मना भी किया क्या? होटल किलो सियरा, let me ask one thing to him. Sir, he is not here. Okay, let me say something. Someone is having confusion and someone has faced, like Alpha Tango Sierra was saying, कि when he was giving Chennai attempt, वहां पे उसको मना किया कि ये पूरा फ्लाइट प्लान का रामायण मुझे मत सुनाओ, तुम इस चीज को स्किप कर सकते हो। यस, आई टोटली एग्री कि यू कैन स्किप दिस, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू, आप इसको स्किप करो, लेकिन एग्जामिनर आपको तब मना करता है जब वो देख लेता है कि आपका टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है, आप मेन चीज बोलने के बदले इसी चीज को बोलने में टाइम ले रहे हो कि IFR कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर VFR कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर आप इस चीज में टाइम वेस्ट करोगे, एग्जामिनर बोलेगा फ्लाइट प्लान बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपका हेल्प कर रहा है कि आप इस चीज में ज्यादा टाइम ले रहे हो, तो इसके बदले आप मेन चीज पे फोकस करो। लेकिन अगर आप अपने कॉल में फ्लाइट प्लान को सूटेबली टाइम रहते हुए बोलने में सक्षम हो, अगर आप सही से फ्लाइट प्लान रिपोर्ट कर देते हो, तो एग्जामिनर आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द रिक्वायर्ड पैरामीटर। आप फंसते हो तभी एग्जामिनर और ज्यादा परेशान करता है। एक चीज तो हमेशा नोट कर लो, अगर आपके कॉल में, ठीक है, द फाइनल थिंग आई एम गोइंग टू टेल, अगर आपके कॉल में किसी भी टाइप का फ्लो ब्रेक है, ठीक है, कहीं भी आपके कॉलिंग में रिदम टूटा, एग्जामिनर आपको खा जाएगा, पक्का आपको परेशान कर देगा, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट एनी गुड थिंग। रिदम टूटा, फ्लो ब्रेक हुआ, एग्जामिनर आपके ऊपर ऐसा सवार होगा कि आप पास नहीं कर सकते, ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ RT। तो कई बार एग्जाम भी करता है सर, जैसे मेरा क्या करता है एग्जाम? मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, मैं थोड़ा एस्टिमेटिंग बोलने के चक्कर में और खा गया टाइम। वो बोल रहा था कि मतलब यू कैन स्किप करके, मैंने बोला एग्जामिनर आपको हिंट देता है कि तुम अगर किसी फालतू चीज में टाइम कंज्यूम कर रहे हो, छोड़ दो, हमको एटलीस्ट मेन चीज बता दो। क्यों? क्योंकि वो वहां पे पास करने के लिए बैठा है, ठीक है, हमेशा वो बोलता है मेन चीज बता दो, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो। लेकिन अगर आप सक्सेसफुली उन सारी चीजों को बोल सकते हो तो बोलो, आपका वो 2-4 नंबर बढ़ाएगा।
वही मतलब वो मुझे लगा कि वो ट्राई किया कि चौथे क्वेश्चन तक पहुंच जाओ ताकि तुम पास हो जाओ करके, और मैं ऐसा, हाँ एग्जामिनर, हाँ मैंने अपने हाँ गाड़ी मार दिया। वो होता है। अगर आप छोटी छोटी चीजों में फंसोगे, हाँ, एग्जामिनर आपको फंसाएगा। ठीक है, वो आपको मौका देगा कि जो ये दो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं विच इज रिपीटिंग इन नेचर, छोड़ दो उसको, मेन मेन चीज बता दो, ताकि एटलीस्ट वो ये समझ पाए कि आपको इस चीज की समझ है कि नहीं। द मेन थिंग अबाउट आरटी इज वो समझदारी देखना चाहता है। ठीक है, अगर आप वो फिर भी देखेगा कि आप गलत कर रहे हो, उसको तो मजा आता है फिर परेशान करने में, वो उसी के लिए बैठा ही है। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका रिदम नहीं बनेगा, फ्लो नहीं बनेगा। फ्लो टूटा, रिदम टूटा, एग्जामिनर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू हैपन। भूल जाओ फिर। ऐसा हावी होगा कि 2 क्वेश्चन से आगे हिलने नहीं देता है वो, और आप कुछ नहीं बोल सकते। आप जब तक में दिमाग लगाओगे तब तक में टाइम खत्म। ठीक है, आई एम क्लोजिंग दिस कॉल फॉर ऑल। डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। अच्छे से प्रैक्टिस करो, नहीं करोगे नहीं होता है आरटी। ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए। Tomorrow I'll open the next topic if I see कि पोजीशन रिपोर्ट इज डन एज पर द मार्क। ठीक है, कल भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड नाइट फॉर एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट।